Hello students. Today we are going to start last part of the solid state. Outline of this part is review of previous session, imperfections in solids, type of point defects, electrical properties of solids and magnetic properties of the solids in this part. Review of previous session. We have discussed so far about close packing pattern in 1, 2 and 3 dimensions in solids. We have discussed about tetrahedral and octahedral voids, formulation of compounds, packing efficiency, which you have studied in simple cubic. It is 52.4%. In FCC, it is 74%. In BCC, it is 68%. We have discussed about calculation of density of unit cell in previous sessions. Now, we are going to discuss about imperfection in solids. Imperfection से नाम ही से पता चल रहा है कि जो perfectly ordered arrangement है उसमें कोई deviation आ जाए उसी को हम लोग imperfection कहते हैं या disorder कहते हैं. Any deviation from perfectly ordered arrangement of constituent particles in crystal lattice is called imperfection in solids. जैसा आप देखिए यहाँ एक आइडियल लैटिस दिया हुआ है, यहाँ रेड और जो ग्रीन कलर के आपको पार्टिकल्स हैं वो परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट में है, एक सीक्वेंस में है. लेकिन दूसरा सिनेरियो देखिए यहाँ पर बिल्कुल रैंडम ऑर्डर में है आफ्टर इम्परफेक्शन. तो इसी को हम लोग इम्परफेक्शन कहते हैं या डिसऑर्डर कहते हैं. इम्परफेक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन पॉइंट डिफेक्ट, जैसा नाम से ही पता चल रहा है ये पार्टिकुलर पॉइंट पर किसी पार्टिकुलर साइट पर जो डिसऑर्डर होता है वहां पर होता है. So point defect arises due to disorder in regular arrangement of constituent particles around a point, around a site. Line defect, it arises due to disorder in the regular arrangement of the constituent particles in an entire row. मतलब ये जितने disorders होते हैं आप सीधे समझ लीजिए कि वो सारे एक लाइन में फॉल करते हैं, इसीलिए हम लोग उनको क्या कहते हैं, लाइन डिफेक्ट कहते हैं. Type of imperfections are of three types. First one, in point defect, impurity defect, stoichiometric defect, and non-stoichiometric defect. Stoichiometric defect and non-stoichiometric defects are further divided as stoichiometric defect. First one is vacancy defect, second one interstitial defect, third one Frankel defect, and Schottky defect. In non-stoichiometric defect, two types are there, metal excess defect and metal deficiency defect. So impurity defect, अब नाम से ही पता चल रहा है जो हमारा क्रिस्टल है उसमें कोई बाहर से मटेरियल आ जाए, अनवांटेड मटेरियल आ जाए, उसी को हम लोग impurity defect कहते हैं. It arises when foreign atoms are present at the lattice site in place of host atoms. मतलब जो हमारे होस्ट एटम जहां साइट पर होना चाहिए वहां पर कोई फॉरेन मटेरियल आ जाए या बाहरी पार्टिकल आ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, इंप्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं. इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक NaCl का लैटिस लेते हैं, उसमें SrCl2 थोड़ा सा आप डाल दीजिए. When NaCl lattice is taken and some amount of SrCl2 is added, so see here what is happening, that Sr plus 2 has plus 2 charge and Na plus is having plus 1 charge. So when one Sr plus 2 impurity will go inside, then 2 Na plus ion has to go out to maintain the electrical neutrality. And what will happen with two vacancies, that one is vacancy will be occupied by Sr plus 2 and another vacancy will remain as such. मतलब जब एक Sr plus 2 जाएगा, उस पर plus 2 चार्ज है, तो दो Na plus को आना पड़ेगा to maintain the electrical neutrality, ताकि दो आयन प्लस वाला बाहर गया तो एक Sr plus 2 वाला अंदर आया, जिससे कि हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगा. Then what will happen, that one site will be occupied by the Sr plus 2 and another site will remain vacant. Therefore electrical neutrality will remain maintained. Then what will happen about the vacancies, cationic vacancies created there? जितना Sr plus 2 गया उतना ही वहां पर आपको cationic vacancies मौजूद रहेंगे.
इस तरह से द नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज प्रोड्यूस्ड आर इक्वल टू नंबर ऑफ Sr+2 आयंस एडेड। तो कितना Sr+2 आप आयंस वहां एड हैं उसको अगर काउंट कर लें तो इस तरह आपको कैटायनिक वैकेंसीज भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन इज वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट, it arises when some of the lattice points left vacant during the crystal formation। मतलब कुछ क्या हो जाए, जो लैटिस साइट पर वहां क्रिस्टल पार्टिकल को मौजूद होना चाहिए था वहां पर क्या हो जाए, वैकेंट रह जाए। जो यहाँ हमने आपको स्क्वायर के फॉर्म में दिखाया है, तो यहाँ पर पार्टिकल मौजूद नहीं है तो ये वैकेंट रह गया। सो दिस इज वैकेंसी डिफेक्ट। Interstitial defect arises when some of the constituent particles accommodate the interstitial sites other than the lattice points। मतलब आपको जहां नॉर्मल साइट होना चाहिए वहां के साथ साथ क्या हो जाए, कुछ इंटरस्टिशियल साइट जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं उनको हम लोग इंटरस्टिशियल साइट भी कहते हैं। तो उन ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट पर भी पार्टिकल हमारा आ जाए, जैसा कि आप सेकंड डायग्राम में देख रहे हैं। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का। Next one is Schottky defect. Equal number of cations and anions are missing from their lattice sites generates Schottky defect। मतलब जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एनायंस, जैसे NaCl है तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिस करेंगे। अगर वहीं पर आप मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड है तो प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ कैटायन एनायंस शुड मिस। फॉर एग्जांपल 1 कैल्शियम +2 मिस करेगा तो क्लोराइड आयन कितना, 2 मिस करेंगे। लेकिन NaCl है तो वहां इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिस करेंगे। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे। सो इक्वल नंबर ऑफ or proportionate number of cations and anions are missing from their lattice sites generates the Schottky defect। The vacancy or Schottky of ionic solids decreases the density of the solid। क्योंकि cation and anion अपने साइड से मिस है तो उनका वेट कम हो गया, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी विल डिक्रीज। It is shown by the crystals with high coordination number and similar size of cation and anion। इसको आप ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले लैटिसेस में होते हैं, इसके साथ साथ कैटायन और एनायन का साइज भी क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। एग्जांपल्स आर NaCl, KCl, NaBr and AgBr। You can see here that some sites of anion and equal number of sites of cations are vacant here, therefore this is Schottky defect। Next one is Frankel defect। In ionic solids in which a smaller ion कौन सा होता है, cation। So in ionic solids in which the smaller ion that is cation is dislocated from its normal site to an interstitial site generates the Frankel defect। मतलब मेटल आयन छोटे होते हैं, वो क्या करेंगे, आपको जो कैटायन होते हैं वो छोटे होते हैं, वो क्या करेंगे, अपना साइट छोड़ करके कहां चले जाते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल साइट में चले जाते हैं। ये उसी को हम इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं, दैट इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट। इन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ऑफ आयनिक सॉलिड डेंसिटी रिमेन्स सेम। डेंसिटी सेम क्यों रहता है, बिकॉज डेंसिटी रिमेन्स सेम हियर बिकॉज cation which is missing from its own site is remaining in the same lattice, उसी लैटिस में मौजूद है। So here density remains same। It is shown by crystals with low coordination number and large difference in the size of cation and anion। वहां जिनमें large difference होता है साइज में cation anion के बीच में, उन्हीं में शो होता है, या जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, लो हो, उसी में होता है। तो आप फ्रैंकल डिफेक्ट और Schottky डिफेक्ट में डिफरेंस बार बार पूछे जाते हैं डिफरेंट बोर्ड एग्जाम से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, और डेंसिटी कम हुआ, किस में कम होगा, किस में अधिक होगा। सो यू शुड टेक केयर अबाउट दिस। फॉर एग्जांपल इट occurs in ZnS, AgCl, AgBr and AgI। You can see a diagram that here particle is present here and it is missing from its original site। You can see clearly here it is missing from its original site। ओरिजिनल साइट यहां से मिस किया और कहां मौजूद है, यहां पर मौजूद है। तो इस तरह से डेंसिटी सेम रहेगा क्योंकि मास में तो कोई चेंजिंग हुआ नहीं, हमारा कैटायन उसी लैटिस में मौजूद है। सो वहां डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन नेक्स्ट वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। तो यहां देखिए, एन एनायन मे बी मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट एंड होल ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन दैट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी is known as F center।
और एफ सेंटर कहां से लिया गया है? फार्बेन सेंटर से। फार्बेन सेंटर का मीनिंग क्या होता है? कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर। अब यहां समझिए, पहले आप NaCl का लैटिस ले लीजिए और सोडियम मेटल ले लीजिए, दोनों को एक क्लोज चेंबर में जब हम लोग थोड़ा टाइम के लिए हीट करते हैं, तो हीट करने पर होगा क्या कि जो सोडियम हमने मेटल लिया है, सोडियम मेटल विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म Na+ and electron. And what will happen that this Na+ ion and electron will do this, that will create the F center. How? Let us understand here. This Na+ will attract Cl- from the interior of the solid. वो attract करेगा and it will form what? NaCl बना करके वो क्या हो गया? एक न्यूट्रल कंपाउंड बना लिया. But what will happen with the vacancy created by the Cl-, जो Cl- हमारा यहां से इंटीरियर ऑफ द लैटिस से मिस किया, उसका न्यूट्रलिटी भी तो मेंटेन करना है. उसको मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से लॉस हुआ हीटिंग के ड्यूरेशन में, वो जाकर के वहां ऑक्युपाई कर लिया, and it will maintain the electrical neutrality. This electron now will absorb the light and it will create color. So see here, the crystals become colored due to excitation of these unpaired electrons when they absorb energy from visible light falling on the crystals. For example, lithium makes LiCl crystals pink, potassium makes KCl crystals violet, and sodium makes NaCl crystals yellow. इसी वजह से कुछ टाइम के बाद आप NaCl जो घर में कॉमन सॉल्ट है वो देखेंगे येलोइश हो जाता है. So this is metal excess defect by anionic vacancies. Next one is metal excess defect by extra cations. It arises due to presence of extra cations in the interstitial sites. For example, you can see है यहाँ cation, यहाँ पर जो हमारे कैटायन है A+ के रूप में कुछ एक्स्ट्रा हो गए, और उसको मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए. लेकिन अब ये हमें समझना है कि ये हुआ कैसे, हाउ इट हैपेंड हियर. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट्स, जो अभी हमने आपको बताया. और देखिए जिंक जो है, जिंक ऑक्साइड, ये व्हाइट कलर का होता है एट रूम टेम्परेचर, बट व्हेन इट इज हीटेड इट लॉसेस ऑक्सीजन एंड टर्न्स येलो. ये हीट करने के बाद ये येलो कलर का हो जाता है. ऐसा क्यों? तो समझिए इसको. जो हमारा जिंक ऑक्साइड है, उसको हमने गर्म किया, हीट किया, तो वहां से क्या बना? जिंक+2 बना और हाफ O2 + 2 इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्सीजन जो है वो तो गैस है, वो तो उड़ जाएगा, लेकिन जिंक+2 कहां उड़ेगा? वो तो अपने लैटिस पर A+ के रूप में मौजूद है, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए है. एंड देन दिस इलेक्ट्रॉन विल अगेन क्रिएट F center and it will absorb light from the visible range and it will create color to the lattice. तो इसी वजह से कुछ समय के बाद अगर आप ध्यान दें तो जिंक ऑक्साइड अगर उसको हम लोग हीट कर दें, so it becomes yellowish due to creation of metal excess defect. Then next one is recapitulation. अब देखिए क्या है, what are the stoichiometric defect? What type of stoichiometric defect is shown by AgCl? कौन सा डिफेक्ट शो करता है? आप याद कीजिए, शॉटकी और फ्रेंकल. इनमें देखिए दोनों में साइज क्या है, कैटायन एनायन का रिलेशन देखिए और इससे सोच के आप बताइए. सो फ्रेंकल डिफेक्ट विल अकर हियर. नेक्स्ट वन, व्हाट आर द एफ सेंटर्स? यू हैव स्टडीड इट, यू शुड डिस्कस इट. देन नेक्स्ट वन इज व्हाट क्रिस्टल डिफेक्ट लोअर्स द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड? दोनों में से कौन सा, शॉटकी या फ्रेंकल? तो फ्रेंकल में तो आप सोचिए थोड़ा सा, किसमें कैटायन एनायन मिस कर जाते हैं लैटिस से, तो शॉटकी में मिस करते हैं. तो शॉटकी में मिस करते हैं तो क्या होगा आपको यहाँ आपको डेंसिटी जो डिक्रीज किया, दैट इज इन शॉटकी डिफेक्ट. Which point defect in its crystal unit increases the density of the solid? आप सोचिए इसमें कौन सा होता है. And why ZNO become yellow on heating? The next one is electrical properties of solids. Solids are classified as conductor, semiconductor and insulator on the basis of magnitude of electrical conductivity. आप इसे फिजिक्स में भी पढ़ते हैं. कंडक्टर्स किसे कहते हैं? The solids whose conductivity ranging between 10 to the power 4 to 10 to the power 7 per ohm per meter are called conductors. And metals have conductivities in the range of 10 to the power 7
per ohm per meter are good conductors for silver, copper. ये सारे क्या हैं, उनकी कंडक्टिविटी 10 to the power 7 से हाई होते हैं, इसलिए वो क्या है, गुड कंडक्टर्स हैं. इंसुलेटर किसे कहते हैं, जिनका क्या हो, कंडक्टिविटी for these solids are very low. It ranges between 10 to the power minus 20 to 10 to the power minus 10 per ohm per meter. ये पर ओम पर मीटर किसका यूनिट है, कंडक्टिविटी का. ये भी बार बार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इन्हें भी आप ध्यान देंगे. Then semiconductors are the solids whose conductivity is in between conductors and insulators. इनका कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच, इंसुलेटर के बीच में होता है. तो आप देखिए इनका जनरली कितना होता है, 10 to the power minus 6 to 10 to the power 4 per ohm per meter. So this is classification of solids on the basis of electrical conductivity. Next point is valence band theory. Valence band theory, it divides compounds, metal substances into three types: metal, conductors, metals that is conductors, then insulators and semiconductors. तो इन तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी लिया गया, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. इसमें वैलेंस बैंड में दो बैंड लिया गया, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. वैलेंस बैंड नीचे रहता है और कंडक्शन बैंड ऊपर रहता है. तो मेटल्स का केस देखिए, मेटल्स में क्या होते हैं, ये आपको कंडक्शन बैंड है व्हाइट वाला, और ये वैलेंस बैंड है. तो ब्लू वाला वैलेंस बैंड है और ऊपर व्हाइट वाला कंडक्शन बैंड है. तो यहां देखिए जो हमारा कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली फील्ड हो, ये हो सकता है, ये दूसरा हो सकता है. वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड क्या हो, ये ओवरलैपिंग बैंड्स हो. तो रीडली आपको इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर हो जाएंगे और ये गुड कंडक्टर होंगे, जो कि केस है आपको मेटल्स का. नेक्स्ट वन इज इंसुलेटर्स. यहां देखिए जो फील्ड वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी है, और इनके बीच में जो एनर्जी गैप है बहुत हाई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉरबिडन जोन और लार्ज एनर्जी गैप. तो यहां देखिए आप हीटिंग करने से भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, जो फील्ड बैंड से एम्प्टी बैंड है, वहां पर नहीं जा सकता. इस तरह से इंसुलेटर हमेशा बैड कंडक्टर का काम करते हैं. लेकिन यहां देखिए सेमीकंडक्टर में थर्ड केस में यहाँ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, फील्ड बैंड और एम्प्टी बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत ही कम है. तो थोड़ा सा हीटिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आपको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर सकता है, और जंप करेगा तो क्या होगा, this will become a good conductor. So at high temperature semiconductors become good conductor, but at low temperature they are bad conductor. तो आप यहां पर सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी आपने देखा. नेक्स्ट वन, सेमीकंडक्टर्स इन डिटेल. Intrinsic semiconductor, pure type of semiconductors are known as intrinsic semiconductor. It shows लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विच इंक्रीजेस विद टेम्परेचर. हमने अभी बताया टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ये क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप करने का संख्या बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो ये गुड कंडक्टर हो जाएंगे. ये आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम आपको पीसेस दिखाए गए हैं. कंडक्टिविटी कैन ऑल्सो बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी, एंड दिस इज नोन एज डोपिंग. हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसे सुटेबल इम्प्योरिटी को एड करते हैं जिससे उसके हमारे जो चाहने वाले प्रॉपर्टीज हैं, मींस वी आर एडिंग सम सुटेबल इंप्योरिटीज इन द सेमीकंडक्टर्स और प्योर सेमीकंडक्टर्स, सो दैट इट्स प्रॉपर्टीज बिकम चेंज्ड एज पर आवर चॉइस. तो इसी तरह हम कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसमें सुटेबल इंप्योरिटी डालते हैं जिससे क्या हो जाए, उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाए. इसे हम क्या कहते हैं, डोपिंग. Impurities are of two types: electron rich impurities और electron deficient impurities. तो अब देखिए जनरली आपको सेमीकंडक्टर्स किस ग्रुप 14 के हैं, उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं. तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए कि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं. अब हम क्या करें, उससे 4 से अधिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले एलिमेंट से इसका डोपिंग कर दें, या फिर 4 से कम वाले से कर दें. तो इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी कौन हो गए, जिसमें 4 से ज्यादा होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी जिसमें 4 से कम होते हैं, वो हो गए. तो इस तरह से हम डोपिंग करते हैं. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ए डोप्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. मतलब जब हमने प्योर सेमीकंडक्टर को डोप कर दिया, वही क्या हो गया, हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया. इट इज ऑफ टू टाइप्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन फॉर नेगेटिवली
चार्ज, तो निगेटिवली चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी, मतलब जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से अधिक है, उनसे डोपिंग करेंगे। और पी टाइप सेमीकंडक्टर दैट इज डोप्ड विथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी, मतलब जिसमें 4 से इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, जैसे ग्रुप 13 12 वाले से हम डोपिंग कर दें, तो वो क्या हो जाएगा? पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो यहाँ देखिए परफेक्ट आपको हमने सिलिकॉन का लिया, अब यहाँ पर हमने आर्सेनियम ले लिया। आर्सेनियम किस में है? आपको ग्रुप 15 में है। 15 में है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 का शेयरिंग हो गया अपने नियर बाई एलिमेंट के साथ, और एक आपको यहाँ एक्स्ट्रा हो गया, मोबाइल इलेक्ट्रॉन के रूप में मौजूद है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन के रूप में मौजूद है। तो ये आपको क्या हो गया? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया, निगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए इसको हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर कह देते हैं। नेक्स्ट वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहाँ हम ग्रुप 13 वाले को से डोपिंग कर दिए, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयरिंग कर लिया, लेकिन एक साइट हमारा क्या रह जाएगा? इसके अराउंड में, बोरॉन के अराउंड में वैकेंट रह जाएगा। नो इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर at this site, so it will create positive charge, it will create hole at that place, that is known as p type of semiconductor. You should take care about this. Now next one is visualization of the semiconductors. You should see here n-type semiconductors. When a small amount of pentavalent impurity such as arsenic is added to a pure germanium semiconductor crystal, the resulting crystal is called the n-type semiconductor. The diagram shows the crystal structure obtained when pentavalent arsenic impurity is added with pure germanium crystal. The 4 valence electrons of arsenic atom form covalent bonds with electrons of neighboring 4 germanium atoms. The 5th electron of arsenic atom is loosely bound. This electron can move about almost as an electron in a conductor, and hence it will be the carrier of the current. In the energy band picture, the energy state corresponding to the 5th valence electron is in the forbidden gap and lies slightly below the conduction band. This level is known as the donor level. When the 5th valence electron is transferred to the conduction band, the arsenic atom becomes positively charged immobile ion. Each impurity atom donates 1 free electron to the semiconductor. These impurity atoms are called donors. What is a p-type semiconductor? When a small amount of trivalent impurity, such as indium, boron, or gallium, is added to a pure semiconductor crystal, the resulting semiconductor crystal is called a p-type semiconductor. The diagram shows the crystal structure obtained when trivalent boron impurity is added with a pure germanium crystal. The 3 valence electrons of the boron atom form covalent bonds with the valence electrons of 3 neighborhood germanium atoms. In the 4th covalent bond, only 1 valence electron is available from germanium atom, and there is deficiency of 1 electron, which is called as a hole. Hence, for each boron atom added, 1 hole is created. Since the holes can accept electrons from neighborhood, the impurity is called acceptor. The hole may be filled by the electron from a neighboring atom, creating a hole in that position from where the electron moves. This process continues and the hole moves about in a random manner due to thermal effects. Since the hole is associated with a positive charge moving from one position to another, this is called as p-type semiconductor. In the p-type semiconductor, the acceptor impurity produces an energy level just above the valence band. Since the energy band between the acceptor energy level and the valence band is much smaller, electrons from valence band can easily jump into the acceptor level by thermal agitation. In p-type semiconductors,
Holes are the majority charge carriers and free electrons are the minority charge carriers. Type semiconductor formations in better way. Now this type of doping can be done with 12 and 16 groups and 13 and 15 groups. A semiconductor formed by combination of group 12 and group 16 elements is called 12 and 16 group compounds or semiconductors. For example, ZNS, CDS, cadmium sulfide, mercury tellurium, HGT, CDAC, cadmium and selenium, etc. If doping is done between 13 and 15 compounds, then that is known as 13 and 15 group compounds. For example, aluminum phosphorus, indium antimony, INSB, and gallium arsenic, etc. Next one is magnetic properties of the solids. Magnetic properties of the different solids are due to orbital motion and spinning motion of the electrons, which are studied in terms of magnetic moment. अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है. आप फिजिक्स में पढ़े हैं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में रहता है तो क्या करता है? If a charge particle is in motion, then that will produce what? Electric field as well as magnetic field simultaneously. तो यहाँ देखिए हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पास दो मोशन है. यह न्यूक्लियस के दोनों साइड भी मूव करता है. फर्स्ट डायग्राम में देखिए न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है और साथ साथ ये क्या करता है, अपने एक्सिस पर भी मूव करता है. तो ये अपने जो न्यूक्लियस के अराउंड मूव किया वो क्या है, ऑर्बिटल मोशन हुआ और उसके वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा. और दूसरा क्या हुआ, अपने एक्सिस पर स्पिन कर रहा तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा. So especially here for lower elements, spin motion is responsible for the magnetic properties. These are divided on the basis of magnetic properties as paramagnetic substance, diamagnetic substance, ferromagnetic substance, anti-ferromagnetic substance, and ferrimagnetic substances. Magnetic properties of the solids. For example, first one, paramagnetic substance. It is weakly attracted by एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है. व्हाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन Cu+2 एंड क्रोमियम +3. आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, आप एमओटी के थ्रू ऑक्सीजन का देखें तो वहां 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. कॉपर +2 का देखें तो वहां 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. इसी तरह अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उससे क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा. Next one, diamagnetic substance. It is weakly repelled by external magnetic field. Why it is repelled by external magnetic field? Because there are no unpaired electrons. Here, unpaired electrons are absent. Therefore, it is diamagnetic. इसका example क्या हुआ? H2O, NaCl, benzene, etc. are example of this class. The next one is ferromagnetic substances. It is strongly attracted by external magnetic field and so paramagnetic. परमानेंट मैग्नेटिज्म. ये क्या करता है, एक बार एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप रख दीजिए तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा और ये परमानेंट मैग्नेटिक कैरेक्टर को रिटेन कर लेता है. एज द मेटल आयंस ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर ग्रुप्ड इनटू स्मॉल रीजन्स कॉल्ड डोमेन्स. जो इनके एक एक मेटल आयन है उनके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं. और ये डोमेन ओरिएंट होकर के क्या करते हैं, अपना प्रॉपर्टी शो करते हैं. मतलब एक एक एटम, एक एक आयन के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ उन्हें हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे. तो देखिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में सारे डोमेन क्या है, एक डायरेक्शन में अलाइंड है. यू शुड टेक केयर अबाउट दिस because these points are very important. It is frequently asked in board exams as well as competitive exams. यहाँ सारे डोमेन्स क्या हैं, एक डायरेक्शन में है. अगर बोर्ड एग्जाम है तो आप ऐसे डोमेन्स का डिनोशन जरूर कीजिए, उसे जरूर रिप्रेजेंट कीजिए. Antiferromagnetic substance. Here zero magnetic moment is there. Domains are aligned in opposite direction in equal number. यहाँ पर होते क्या है, जैसे MnO में सारे जो मैग्नेटिक मोमेंट आपने देखा वो देखिए काउंट कीजिए तो यहाँ 3 ऊपर है और 3 नीचे हैं. तो इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, 0. So magnetic moment should be 0 and domains are arranged in opposite direction in equal number and it becomes
without any magnetic field. Ferrimagnetic substance, it is attracted by external magnetic field. ये मैग्नेटिक फील्ड से जो एक्सटर्नल होते हैं उनसे अट्रैक्ट होते हैं. डोमेन्स आर अलाइंड अनइक्वली इन अपोजिट डायरेक्शन. यहाँ डोमेन क्या होते हैं जो हम लोगों ने अभी देखा, जैसे ऊपर 3 था पिछले वाले केस में, 3 ऊपर था 3 नीचे था, यहाँ इक्वल नंबर में नहीं होंगे, यहाँ क्या होंगे, अनइक्वल नंबर में होंगे, जिससे थोड़ा सा मैग्नेटिक मोमेंट जरूर रहेगा और उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये शो करेंगे. सो हियर यू कैन सी दैट हियर 4 1 2 3 4 डोमेन्स आर एबव एंड 2 आर डाउनवर्ड. तो इस तरह से आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, आपको मैग्नेटिक मोमेंट आपको ऊपर शो करेगा. जैसे एग्जांपल आपको Fe3O4 मैग्नेटिक ऑक्साइड, इसीलिए हम लोग इनको आयरन का मैग्नेटिक ऑक्साइड भी कहते हैं. नेक्स्ट वन इज फेराइट्स आर एग्जांपल्स ऑफ दिस क्लास. So today we studied about imperfections in the solids, type of point defects, electrical properties of the solids, and band theory, electrical conduction, N and P type semiconductor, magnetic properties of solids, paramagnetic, diamagnetic, ferromagnetic, antiferromagnetic, and ferrimagnetic substances. So these are homework for you. You should do it by yourself. So thank you.